Hello everyone, welcome to my channel. Now we'll be talking about very important topic from hydrogen and its compound, which is hard water. So when water flows on the surface of the earth, it dissolves many salts, presence of calcium and magnesium salts in the form of bicarbonates, chlorides and sulfates in water makes the water hard. Hard water does not give lather with the soap. Iron salts also cause hardness of water. Okay. Water free from soluble salts of calcium, magnesium is called soft water. It gives lather with soap easily. So what is hard water? Hard water is when calcium and magnesium salts are present in the form of bicarbonates, chlorides and sulfates, and then it makes the water hard. It does not give lather with soap. So it is called hard water. One extra point, that is iron salts also called hardness of water. Water free from soluble salts of calcium and magnesium is called soft water. There is no calcium and magnesium salts, then it is called soft water. It gives lather, it gives good lather with soap. Okay, easily it gives lather. Hard water forms precipitate with soap. With soap, hard water forms precipitate. Hard water forms precipitate with the soap. Okay, that's fine. Hard water forms a precipitate with the soap. That's why we cannot clean the clothes properly. It is not suitable for laundry. Soap is sodium salt of higher fatty acid like palmitic acid, oleic acid, stearic acid. So soap is nothing but salt of higher fatty acids. In one sat it is given sodium stearate, that is C17 H35CONA. So you have to remember this, sodium stearate. So there are 18 carbons including CONA. Okay, carboxylate ion. Reacts with hard water to precipitate calcium stearate, magnesium stearate. So what happens here? Na is replaced by M. So here M can be calcium or it can be magnesium. Hardness of water is of two types. One is temporary hardness and the other is permanent hardness. Temporary hardness can be removed easily, but permanent hardness cannot be removed by simple processes. So we have to use some advanced processes. So are you ready to learn this understand these advanced processes? So let's see. So from this idea that sodium stearate is there and that sodium is replaced by calcium and magnesium, from this idea we will be making hard water, permanent water into a soft water. Okay. Temporary hardness. Temporary hardness is due to presence of bicarbonates of calcium and magnesium. So temporary hardness is due to bicarbonates. This bicarbonates can be easily removed. So it is also called bicarbonate hardness. It can be removed by the following two methods. First method is boiling. During the boiling, the soluble magnesium bicarbonate is converted into insoluble magnesium hydroxide. The soluble magnesium carbonate is converted into insoluble magnesium So in temporary hardness of water, what happens? We will convert soluble bicarbonates into insoluble magnesium and magnesium hydroxide and calcium carbonate. So it can be removed by two methods. One is simple boiling, other is Clark's method. It is important that there was a question in previously papers. Okay. Boiling is during the boiling the soluble magnesium bicarbonate is converted into insoluble magnesium hydroxide and calcium bicarbonate. If it changed to insoluble calcium hydroxide, it is because of low solubility product of MgO has taken twice. See, you have to understand one thing here. During the boiling, the soluble magnesium carbonate is converted into insoluble magnesium hydroxide and calcium bicarbonate is converted to calcium carbonate. That is also insoluble. Both are insoluble. Magnesium hydroxide and calcium carbonate are insoluble. Insoluble means precipitate is formed. So it is because of low solubility of magnesium hydroxide. Low solubility means high KSP. High KSP means precipitate formation. Low solubility product. Okay, it is because of low solubility product of MgO has taken twice. It is because of compact. Okay, it is because of low solubility product of MgO it's taken twice.
compared to that of magnesium carbonate. So there's a mistake in NCERT. In NCERT it is said that it is because of high solubility product of magnesium hydroxide as compared to magnesium carbonate that Mg has taken twice as precipitate. It's because of low solubility product of Mg has taken twice as compared to MgCO3. Precipitates can be removed by filtration of filtered thus obtained soft water. So guys, I have checked it out. So I found that in NCERT this is given wrong. The solubility product of Mg is taken twice is less than the solubility product of MgCO3, hence it dissolves. We can relate QSP and KSP to know its precipitation, okay? But when you compare KSP solubility product, MgO has taken twice, solubility product is less than MgCO3, and there's a huge difference. If you see KSP of Mg has taken twice, this 18 into 10 to the minus 11, whereas MgCO3 is 3.5 into 10 to the minus 8. So MgO has taken twice is very far less than MgCO3 KSP. So these precipitates can be removed by filtration, and filtrate thus obtained is soft water. If you talk about MgHCO3 taken twice, this is nothing but magnesium bicarbonate. This bicarbonate is heated. Boiling means it is heated. When it is heated, what happens? It will convert into magnesium hydroxide. It will precipitate. Calcium bicarbonate will form calcium carbonate. So guys, sometimes the question comes as a statement type question, and it says that when magnesium and calcium bicarbonates are heated, magnesium and calcium hydroxide forms respectively. Is this statement correct? It's absolutely ridiculous. Because calcium carbonate is forming calcium hydroxide. So Clark's method. So there's a trick to remember what are the how to remove temporary hardness. The methods involved. We usually get confused with the Clark's method is temporary hardness removal or permanent hardness removal. So I'll give you a trick. So in this method, calculate an amount of milk of lime. Lime is nothing but what? Ca is taken twice is called lime. So guys, remember this. Ca is taken twice is what? CaOH taken twice is nothing but lime, milk of lime is added. Calculated amount ऐसे जितना कितना भी डाल दो, कैलकुलेट करके डालना है. एडेड टू हार्ड वाटर, कितना आपने वाटर लिया है उसके हिसाब से. सो इट प्रेसिपिटेट्स आउट कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. द प्रेसिपिटेट्स कैन बी फिल्टर्ड आउट. यहाँ पे ध्यान रखने की बात इतनी है कि कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा. ओके, सिंस हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स लाइम ले रहे हैं, मिल्क ऑफ लाइम, सो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा. तो कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल्स बनते हैं इफ यू टेक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स, और 1 मोल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ मिल्क ऑफ लाइम. क्या होगा इसे डालेंगे? बिकॉज द वाटर इज रीड ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस बट एक्वायर्स आर्टिफिशियल परमानेंट हार्डनेस. अगर आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा डाल दिया तो क्या होगा? आर्टिफिशियल परमानेंट हार्डनेस आ जाएगा उसके अंदर, है ना. सो इसलिए आपको कैलकुलेटेड अमाउंट डालना है. परमानेंट हार्डनेस क्या होता है? परमानेंट हार्डनेस क्लोराइड, सल्फेट्स और कैल्शियम की वजह से होता है. किसके कारण होता है? क्लोराइड, सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, क्लोराइड और सल्फेट की वजह से. तो ये क्लोराइड और सल्फेट क्या करता है? परमानेंट हार्डनेस करवाता है. ठीक है. दिस टाइप ऑफ हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव बाय बॉइलिंग. आप इन्हें बॉइल कर रिमूव नहीं कर पाओगे, और सॉल्ट्स नॉट डिकम्पोज बाय बॉइलिंग. परमानेंट हार्डनेस इज रिमूव बाय फॉलोइंग मेथड्स. तो एक होता है सोडा प्रोसेस, जिसमें हम वॉशिंग सोडा यूज़ करते हैं. एक कार्गन मेथड होता है, और तीसरा होता है गैस परमिटेड प्रोसेस या आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड भी बोलते हैं इसको. यहाँ पे क्या करते हैं? अनएक्सचेंजेबल मेथड में हम जियोलाइट यूज़ करते हैं, और सिंथेटिक रेजिन मेथड में हम कैटायन एंड एनियन एक्सचेंजर्स यूज़ करते हैं. तो परमानेंट हार्डनेस की बात करते हैं क्लोराइड्स और सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम के कारण होता है. तो फर्स्ट मेथड सोडा प्रोसेस या वॉशिंग सोडा के मदद से हम रिमूव करते हैं. तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं. वॉशिंग सोडा इज यूज टू रिमूव हार्डनेस.
वॉशिंग सोडा लेना है आप, इसलिए ना वॉशिंग सोडा यूज़ किया करो कपड़े धोने के लिए, क्योंकि अगर पानी हार्ड भी है फिर भी आपके कपड़े साफ़ हो जाएंगे। लेकिन इफ़ यू यूज़ सोप देन प्रेसिपिटेट बन जाएगा एंड योर क्लोथ्स विल नॉट बी क्लीन, इंस्टेड अ प्रेसिपिटेट विल फॉर्म एंड इट विल स्टिक टू योर क्लोथ्स। सो वॉशिंग सोडा इज यूज्ड टू रिमूव द हार्डनेस, कौन सी भी हार्डनेस हो वो मेरी टेम्परेचर सब रिमूव जाता है। Guys, sorry for the interruption, but it's an incoming call from mobile recharge. So these people. Let's talk about soda process. वहाँ पे हम वॉशिंग सोडा यूज़ करते हैं, तो वॉशिंग सोडा में हम क्या करते हैं, सोडियम का यहाँ पे क्या होता है, ये हार्डनेस को रिमूव करता है। तो सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद soluble calcium and magnesium chlorides and sulfates of hard water to form insoluble carbonates. तो यहाँ पे जो सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट को तो वॉशिंग सोडा बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट को तो वॉशिंग सोडा बोल देते हैं। सोडियम कार्बोनेट से प्रॉब्लम नहीं है अगर एक्सेस भी हो जाता है, तो प्रॉब्लम है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल होता है, तो हमें उसे इनसॉल्युबल बनाना है। इनसॉल्युबल रहेगा तो प्रेसिपिटेट बन नीचे ही जम जाएगा, सो दैट विल बी नॉट बी अ प्रॉब्लम। लेकिन ये जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम भी सॉल्युबल है, इनको इनसॉल्युबल बनाना, तो पानी में ये सॉल्युबल है, इनको इनसॉल्युबल। एक्चुअली हमने स्टार्टिंग में बोला था कि वाटर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है रेन वाटर। जब पानी जब ज़मीन पे जब सॉइल से फ्लो होता है, क्योंकि वाटर का डायरेक्ट कांस्टेंट जोरदार है, तो इसलिए बहुत सारे सॉल्ट्स इसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं। बहुत सारे सॉल्ट्स डिज़ोल्व होने की वजह से क्या होता है कि ये वाटर हार्ड बन जाता है, इसकी वजह से सोप से ज़्यादा नहीं लेता, सोडियम स्टीरेट से ज़्यादा नहीं लेता, इसलिए प्रेसिपिटेट बना देता है। और जब आप वो पानी को यूज़ करते हैं और कपड़े वॉश करने के लिए, अपने हेयर वॉश करने के लिए, तो स्टिकी प्रेसिपिटेट ब्लू टाइप लग जाता है एंड इट कॉज लॉस ऑफ इरिटेशन। या सो यहाँ पे क्या होता है कि हम सोडियम कार्बोनेट यूज़ करेंगे दैट वॉशिंग सोडा, और जिसे अगर कैल्शियम से रिएक्ट किया तो MCO3 कैल्शियम और मैग्नीशियम से रिएक्ट करवाएंगे तो MCO3 मतलब MgCO3 या CaCO3 बनेगा। +2 NaCl, ओके। MSO4 लेना है आपको, MSO4 लेना है, +2 NaCO3, MSO4 इज नथिंग बट कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट से हमने बोला था कि क्लोराइड सल्फेट की वजह से होता है, राइट। तो क्लोराइड और सल्फेट दो भी कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कार्बोनेट्स रिस्पेक्टिव कार्बोनेट्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लेंगे एंड SO4। तो यहाँ पे हम जो भी हार्डनेस रिमूव कर रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है, सोडियम एक्सचेंज होता है हर प्रोसेस में, ठीक है। कार्गन प्रोसेस, कार्गन इज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। तो कार्गन क्या होता है, कार्गन इज नथिंग बट सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। NCERT में कैसे लिखा है, Na6P6O18, Na6P6O18 बोल के लिखा हुआ है, और इसको हम बोलते हैं सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट बोलते हैं इसको। यानी सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट NaPO3 टेन 6 ऐसे लिख सकते हैं, Na2NO4PO3 होल 6 भी लिख सकते हैं, और Na3P6O18 जो NCERT में लिखा है ऐसे भी लिख सकते हैं। This does not precipitate the calcium and magnesium salts which removes calcium C+2 and Mg+2 ions either by adsorption or by forming complexes. So adsorption से remove कर देगा या complex बना देगा। So this does not precipitate the calcium and magnesium, लेकिन remove कर देता है, डायरेक्ट remove कर देता है। इसके पास क्या है, सोडियम, ठीक है। अगर इसलिए ना इसको हम ऐसे मॉडिफाई करके लिखते हैं Na2 Na4 PO3 6 ऐसे लिख। तो ऐसे लिखने से क्या होता है कि जो बाहर दो सोडियम है, क्योंकि सोडियम यूनिवैलेंट है और मैग्नीशियम कैल्शियम डाइवैलेंट है, तो बाहर Na2 है और अंदर Na4 PO3 6 है, तो इससे जो Na2 है वो रिएक्ट करेगा और वो एक्सचेंज हो जाएगा, राइट। लेकिन Na2 नहीं, Na2 एक्सचेंज नहीं होगा, अंदर वाला जो अंदर 4 हाइड्रोजन है कॉम्प्लेक्स के अंदर, 4 सोडियम है, तो 4 सोडियम में से 2 सोडियम रिमूव होंगे और एक कैल्शियम और एक मैग्नीशियम, या फिर एक मैग्नीशियम या एक कैल्शियम उसमें कॉम्प्लेक्स में बन जाएगा, तो ये रिमूव हो जाता है।
तो ये कार्गिन मेथड में हम क्या करते हैं, कार्गिन को यूज़ करते हैं। कार्गिन क्या होता है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट होता है। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं Na2Na4 PO3 टेकन 6, इसको ये तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं Na4 PO3 टेकन 6 होल -2 चार्ज। तो सोडियम निकल गया तो ये कॉम्प्लेक्स पहुँच पड़ा है, तब का ये होगा नहीं है तो भी ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है कि कार्गिन मेथड में हम P6O18 को यूज़ करते हैं। ये सोडियम अंदर कॉम्प्लेक्स का सोडियम रिमूव हो जाता है और 2 सोडियम रिमूव होकर एक मैग्नीशियम या एक कैल्शियम कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब दूसरा मेथड है आयन एक्सचेंज मेथड, जिसको हम गैस परमिटेड मेथड भी बोलते हैं। नाम से तकलीफ नहीं लेना है आपको, गैस परमिटेड प्रोसेस एनसीईआरटी में नहीं लिखी, लेकिन इसका दूसरा नाम आयन एक्सचेंज मेथड देकर है। तो गैस परमिटेड प्रोसेस यू कैन रिमेंबर दैट ऑल्सो। परमिटेड इज आर्टिफिशियल जियोलाइट। परमिटेड क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल परमिटेड एक आर्टिफिशियल जियोलाइट होता है। जियोलाइट क्या होता है हम कार्बन फैमिली में पढ़ेंगे। केमिकल इट इज़ हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनेट और सिलिकेट। अगर मैं इसके केमिकल फॉर्मूला की बात करूँ तो इट इज़ हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम और सिलिकेट। सो Na2Al2SiO8 और X वाटर मॉलिक्यूल होता है इसमें, या फिर इसको आप को Na2Z बोल के भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे रिएक्ट करेगा कौन, सोडियम रिप्लेस होगा। सो इसका केमिकल फार्मूला होता है हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम और सिलिकेट, जो आप देख सकते हो कि एनसीईआरटी में, दैट इज़ नथिंग बट सोडियम एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट, SiO4 होता है ना, ऑर्थोसिलिकेट। देखो ऐसे लिख सकते हो NaAlSiO4 लिख सकते हो, X वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें, या फिर ऐसे लिख सकते हैं Na2Al2Si2O8, मतलब डबल क्या ले सकते हो, कैसे लिख सकते हो। और Na2Z, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 सोडियम नहीं लिखेंगे, क्योंकि सोडियम यूनिवैलेंट मैग्नीशियम कैल्शियम डाइवैलेंट है। Okay, so sodium carbonate, alumina and silica are fused together to obtain permitted in a suitable container. Permitted is, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट तो पता है आपको, सोडियम कार्बोनेट एम्पेरिकल फार्मूला इसका NaAlSiO4 होता है और NaZ। तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है, सोडियम कार्बोनेट, एल्यूमिना, सिलिकेट आर फ्यूज टुगेदर टू ऑब्टेन परमिटेड। तो ये आर्टिफिशियली बनाया गया है, तो इसमें बनाने के लिए हमने सोडियम कार्बोनेट लिया था, एल्यूमिना और सिलिका लिया। सो इन अ सुटेबल कंटेनर परमिटेड इज पैक्ड इन हार्ड वाटर इज अलेट टू पर्कुलेट थ्रू इट। उसमें से हार्ड वाटर जाएगा, हार्ड वाटर जब इससे पास होगा परमिटेड से, तो यहाँ पे क्या होगा कि जितनी भी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स है जो सॉल्युबल फॉर्म में है, वो ये कॉम्प्लेक्स, ये जो जियोलाइट है उसमें फंस जाएंगे और सोडियम निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 2 सोडियम निकलेंगे, एक कैल्शियम और एक मैग्नीशियम के लिए। सो यहाँ पे Na2Al2Si2O8 या फिर आप Na2Z लिख सकते हो डायरेक्ट, या NaZ लिख सकते हो और NZ2 बन जाएगा। यहाँ पे NZ2 बन जाएगा, NaZ ले लो, NaZ में M+2 कैल्शियम मैग्नीशियम हो सकता है, MZ2 बन जाएगा और 2Na+ बाहर आने का, तो 2Na+ ये, तो आप बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिख के समझ सकते हो। where M is magnesium or calcium. So when all the sodium is in the permitted is used, then it is exhausted permit. तो पूरा परमिट यूज़ हो गया है, क्योंकि देखो पता नहीं कितना हार्डनेस है उसका, हार्डनेस, डिग्री ऑफ हार्डनेस पता नहीं कितना है, तो उसके ऊपर डिपेंड करें कि आपको कितना परमिटेड यूज़ देगा। जब सब परमिटेड एक्सचेंज हो जाएंगे तो आप उसको बोलिए एग्जॉस्टेड परमिटेड। द एग्जॉस्टेड परमिटेड इज जनरेटेड बाई ट्रीटिंग विद ब्राइन सोल्यूशन। तो आप वो एग्जॉस्टेड परमिटेड को कलेक्ट करो और वो करने के बाद उसके अंदर सोडियम क्लोराइड डालना, और उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, आपको अच्छा फ्रेश डीजनरेटेड परमिटेड मिल जाएगा, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं सिंथेटिक रेजिन मेथड। तो ये मेथड क्या होता है, इस मेथड में हमें क्या करना है, nowadays या फिर recently suitable synthetic cation exchange resins have been developed to remove hardness of water. This method is more efficient than zeolite process. Cation exchange resins contain large organic molecule with SO3H group. Cation में क्या होता है, SO3H group.
एंड आर वाटर इनसॉल्युबल, तो ये वाटर इनसॉल्युबल होता है. एंड एक्सचेंज रेजिन्स आर सो 3H चेंज टू RNA बाई ट्रीटिंग विद एक्वस NaCl से ट्रीट करोगे कि सोडियम ही एक्सचेंज होता है. उसके बाद दिस रेजिन एक्सचेंजेस Na प्लस आयंस विद Ca+2 and Mg+2 ions using hard water to make water soft. Here R is resin anion. उसके बाद क्या होता है, जो 2RNA है वो M+2 के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनता है R2M+2 Na. रेजिन कैन बी रीजनरेटेड बाय एडिंग एक्वस NaCl. रेजिन को हम रीजनरेट कर सकते हैं कैसे, एक्वस NaCl वाले कदम. सो R2M बन गया, उसको बाहर निकालो, बाहर निकालने के बाद इसको NaCl एक्वस NaCl से ट्रीट करो और यहाँ पे जितने भी कैल्शियम है वो बाहर आ जाएंगे और NaCl मिल जाएगा. So pure demineralized deionized water free from all soluble minerals obtained in 2 steps. तो यहाँ पे अगर आपको एकदम प्योर deionized water free from all soluble mineral salts मिलता है, मतलब उसमें कोई भी नहीं, जैसे वाटर के अलावा H2 के अलावा कुछ भी नहीं होता, ना सोडियम होता है, ना ही इम्पॉर्टेंट आयॉन्स जो हमें चाहिए हमारी बॉडी के लिए चाहिए वो नहीं मिलते हैं इसमें. इसको अलग से डालते हैं, इसलिए मिनरल वाटर इतना टेस्टी इसके अंदर सॉल्ट होते हैं. सो स्टेप 1 एंड स्टेप 2 देखते हैं. स्टेप 1 में क्या होता है, water is passed through a tank containing cation exchange resin which consists of giant organic molecules having COH group. The Ca+2, Mg+2 and any other cation in the water sample are replaced by H plus ions from the resin and thus makes the water acidic. तो यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे आप पानी टैंक में केटोन एक्सचेंज रेजिन रखते हो और फिर उसमें से वाटर को पास करते हो, जिसमें जॉइंट मॉलिक्यूल्स हैं और COH ग्रुप भी है उसमें. जो Ca+2 Mg+2 है, एनी अदर केटोन इन द वाटर सैम्पल. जैसे क्या क्या हो सकते हैं केटोन, Na+2, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये केटोन्स हो सकते हैं. तो ये सारे निकल जाएंगे. एनी अदर केटोन इन द वाटर sample are replaced by the H plus ions from the resin and thus makes water acid. और वाटर क्या बन जाता है, एसिडिक बन जाता है और H plus ions से सारे निकल जाते हैं. H plus ions क्या होते हैं, निकल their cation in the water sample are replaced by H plus ions from the resin. Actually होता क्या है, you see properly, जो हमने रेजिन लिया है SO3H ग्रुप है, जो H है ना यहाँ पे ये H रिप्लेस करता है. हम जब से क्या कर रहे थे सोडियम रिप्लेस करते हैं, लेकिन ये नया मेथड निकला रिसेंटली आया है. नाउ-अ-डेज हम ये मेथड यूज़ करते हैं. ये जो H वाला ग्रुप है, RCOH वाला ग्रुप है, वो H जो है वो रिप्लेस करता है कैल्शियम और मैग्नीशियम से. ओके, तो आप रिएक्शन देख सकते हो, इतना क्लियरली नहीं देखे, ठीक है. यहाँ पे जैसे कि RCOH M+2 से रिएक्ट करेगा या फिर RH मान लो M+2 से रिएक्ट करेगा, Mr2 बन जाएगा. ओके, और 2H प्लस आयंस रिलीज हो जाएंगे. तो अब क्या हो गया, ये वाटर एसिडिक हो गया क्योंकि प्रोटॉन रिलीज हो गया टैंक में, वाटर टैंक में. तो अब क्या हुआ, ये एसिडिक हो गया. इसका मतलब कि पानी था आपके पास, पानी था उसके अंदर कुछ आयॉन्स का इम्प्यूरिटी था, जैसे कि परमानेंट और टेम्परेरी कुछ भी आयॉन्स हो सकते हैं, जैसे कि क्लोराइड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, NaCl हो सकता है, कॉमन सॉल्ट थोड़ा मिला हुआ, एंड बाइकार्बोनेट्स हो सकते हैं, कार्बोनेट्स हो सकते हैं. तो सब एक्सचेंज हो जाएंगे H प्लस. स्टेप 2 क्या होता है, वाटर इज पास थ्रू अ टैंक. जितना भी पानी था आपके पास वो टैंक से निकलेगा. देन वाटर इज पास थ्रू अ टैंक. जितना पानी हमें वो टैंक मिला था वो दूसरे टैंक में पास करेंगे कंटेनिंग एनियन एक्सचेंज रेजिन वेयर ऑल टाइप्स ऑफ एनियंस, क्लोराइड, HCO3-, SO4-2 सब रिमूव हो जाएंगे एक्सेट्रा इन वाटर बाय replaced by OH- ion from the resin. Anion exchange resins are chained organic molecules with basic groups attached to them. Okay, so जो RNH3OH ग्रुप है, सपोज RNH3OH ग्रुप Cl- एक्सचेंज करके RNH3Cl बना लेगा और OH- लिबरेट हो जाएगा. पहले कैटोन एक्सचेंज रेजिन से हमें H प्लस मिला है, यहाँ से OH- मिलकर दोनों कंबाइन होकर आपको जल मिल जाएगा, जल मीन्स वाटर मिल जाएगा. सो RNH3OH SO4-2 सेकेंड SO4+2OH- H प्लस और OH- मिलकर वाटर बन जाएगा और आपको प्योर वाटर मिल जाएगा. तो थोड़ा सा वाटर कहाँ से आया, थोड़ा सा वाटर कैटोन और एनियन एक्सचेंज रेजिन से आया,
और जो थोड़ा वाटर था वो जो पहले से गैलेंस ऑफ वाटर था वो वैसे ही है, और इसमें के जो इम्प्यूरिटीज़ थे, आयॉन्स थे, वो निकल गए। अब वाटर में कुछ भी नहीं है H2O के अलावा, ठीक है। Cation exchange resin can be revived by passing a moderately concentrated solution of sulfuric acid to it. Anion exchange resin can be revived by treatment with moderately concentrated solution of caustic soda, sodium carbonate. So cation exchange resin can be revived by passing a moderately concentrated solution of sulfuric acid to it. Anion exchange resin can be revived by treatment with moderately concentrated solution of caustic soda, sodium carbonate. सो इससे हम इसको रीजनरेट कर सकते हैं। एनसीईआरटी में लिखा है कि द एग्जॉस्टेड cation anion resin beds are regenerated by treatment with dilute acid and alkali solution. तो dilute acid जैसे सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हो, और एनियन के लिए कौन सा सोडियम कार्बोनेट का कॉस्टिक सोडा ले सकते हो। कॉस्टिक सोडा ले सकते हो एंटीवाइट हम इस ब्लॉक में पढ़ेंगे, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तो कैन डी आपसे एक सवाल है कि कैन डीमिनरलाइज्ड वाटर बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, क्या इसको पीने के लिए यूज़ कर सकते हो? वाटर पीने के लिए नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि जो हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल आयॉन्स हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट आयॉन्स है सोडियम, पोटेशियम, ये सब निकल जाते हैं। सो नो, इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, दो इट इज़ प्योर। मिनरल्स और सॉल्ट्स मस्ट बी एडेड टू ड्रिंकिंग वाटर एज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन प्रॉपर हेल्थ। ओके, तो हम इसको अलग से ऐड करेंगे, तो कभी ज़्यादा है तो कभी ज़्यादा मिनरल वाटर तो ज़्यादा ही वो दिखता है। तो हैवी वाटर के बारे में अब बात करते हैं कि हैवी वाटर क्या होता है। एक सेकेंड, हैवी वाटर बात करें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बात करें। तो पहले हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखते हैं, उसके बाद हम हैवी वाटर के बारे में करते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, एनसीईआरटी के हर पॉइंट्स को चप्पा करते हैं, उसके बाद जो 2-3 पॉइंट्स में एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 some water because गलना बहुत सूखा है। जब रिकॉर्ड करती हूँ तो ऐसा लगता है मेरा गला खराब हो गया माय थ्रोट। So hydrogen peroxide, let's talk about H2O2.